आप सभी का स्वागत है आज के बिजनेस अकाउंट्स ट्रेनिंग के सेशन में। और जैसा कि हम टेली क्लास कर रहे थे, आज का लास्ट क्लास है और इस क्लास को भी आज विकी सर लेंगे। सो बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमित गौतम जी को फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस रिसोर्स पर्सन एंड लीडिंग पर्सन एज वेल। ओवर टू यू अमित जी। Thank you so much, Abhishek, sir. And now I would like to introduce our resource person, Mr. Vicky Gautam. He is a BCom Honors graduate from Motilal Nehru College, University of Delhi. He completed his internship at VGHSR and Associate LLP, a chartered accountant firm, and later continued working there as an auditor, where he gained practical exposure and auditing various companies. He has also worked with Samsung, holding MIS, financial reporting, and overall accounting function. Further, he worked as a senior accountant in Kessel India, a Germany-based organization, and he also pursuing LLB to gain expertise in taxation and corporation law. Apart from this, his professional career, he has been actively involved in social work, contributing to NGOs such as Saksham Bharati, Magic Bus, and Saksham Rojar Society. He has been mentored and guided by Jyotika Kalra, president of Saksham Rozgar Society, who has been constant source of supporting motivation since in school days. And it is an honor to introduce Mr. Pradeep Kumar Malhotra, sir. He holds a BTech in mechanical engineering from IIT Delhi and an MBA, and began his career as a scientist at DRDO, contributing to missile development with over 32 years of experience in government and PSU sector. He has worked across project management, production, and multiple engineering and administrative domains. For the 10 years, he has been actively associated with Saksham Bharti as a secretary and mentor, conducting session or personality development, career counseling, yoga, and pranayama. We are truly privileged to have him with us today. Thank you so much. Over to you, Abhishek. So thank you Gautam ji for the introductions and I'd like to invite Vicky Gautam ji for the session. Thank you, Abhishek ji, and thank you, Amit ji, for the introduction. And thank you so much, Saksham Rozgar Society. And thank you so much. Special thanks to the president of the Saksham Rozgar Society, Ms. Jyotika Kalra ma'am, for giving this opportunity. और आप सभी का स्वागत है सक्षम रोजगार सोसाइटी में अगेन। और जैसा आप सभी को पता है, जो हमारी टैली की जो सीरीज चल रही है, बिजनेस एंड अकाउंट्स की जो हमारी पूरी ट्रेनिंग चल रही है, उसके अंदर जो हमारी टैली की जो क्लासेस चल रही हैं, उसके अंदर आप सभी देख सकते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, विच इज रिलेटेड टू टैली एसेट एंड लाइबिलिटीज विद असाइनमेंट। ठीक है। तो इससे पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा, बेसिक टैली के बारे में पढ़ा कि टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बेसिक ओवरव्यूज के बारे में हमने जाना, उसके बेसिक फीचर्स के बारे में हमने जाना। ठीक है। और उससे पहले हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, एक मन्नत फर्नीचर की स्टोरी, जिससे हमने ये जाना था कि एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें किस किस तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है, किस किस तरीके के एक्सपेंस होते हैं, और किस किस तरीके की हमारी इनकम होती है, और किस तरीके से एक बिजनेस चलता है आइडिया के आने के बाद, और किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को रन करना है और प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करना है, मतलब देखना है, फाइनेंशियल्स बनाने हैं। और उन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, टैली प्राइम। ठीक है। तो आज के जो हमारा सेशन होने वाला है उसी पे बेस होने वाला है, और हमारी सीरीज में आगे ही बढ़ने वाला है। तो हम चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो पीएनएल अकाउंट हम लोगों ने कल इसको काफ़ी डेप्थ में पढ़ ही लिया था। बस मैं आपको रिवाइज कराने के लिए मैं दोबारा इसको रीड आउट कर रहा हूँ। अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो अ कंपनीज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजली 1 ईयर। तो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसके तहत आपको पता लगता है कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। ठीक है। और उससे हमें ये पता लगता है कि हमारे कंपनी में कितनी इनकम है और हमारे पास कितना एक्सपेंस है। ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, फॉर अ पर्टिकुलर ईयर या फिर पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो पीनल अकाउंट है वो 1 साल का ही हो सकता है। ठीक है। इट कैन बी फॉर 2 मंथ ओनली, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट।
ठीक है ना। तो यूजुअली और मोस्टली जो होता है हमारा पीएनएल अकाउंट वो 1 साल का ही बनता है, ठीक है। बाकी इट हेल्प अस नो वेदर द बिजनेस हैज मेड अ प्रॉफिट और लॉस। और ये हमें ये बताता है, हमारा पीएनएल स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि हमारे हमारे फाइनेंशियल्स में, हमारी कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। दैट इज वाई वी कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम पढ़े थे की पॉइंट्स के बारे में। इनकम, इनकम क्या होती है? इनकम इज द मनी अर्न बाय ए बिजनेस फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो गुड्स मतलब अपने स्टॉक, जो हम बेचते हैं, प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, उसको बेचकर जो होने वाला हमारे को पैसा मिलता है वो हमारे लिए इनकम बन जाता है, ठीक है। और उसी के साथ हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी को अपार्ट फ्रॉम द गुड्स, तो वो हमारी क्या हो जाती है? सर्विस इनकम हो जाती है, ठीक है। और ये दोनों ही इनकम हमारे बिजनेस के लिए मेन इनकम होती है, क्योंकि हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड हो गई, ठीक है। तो ये हमारी इनकम हो गई। दूसरा हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या होता है? इज द मनी स्पेंट ऑन रनिंग द बिजनेस सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रेंट, सैलरीज एटसेट्रा। तो एक्सपेंडिचर वाले मतलब क्या हो गया? ऐसा मनी, जो ऐसा खर्चा बेसिकली। एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट ऑन रनिंग द बिजनेस, जो रनिंग बिजनेस को रन करने के लिए जो जो खर्चे हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। जो भी हम अमाउंट, जो भी हम मनी को स्पेंड कर रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो सभी क्या है? हमारे एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल आप सभी को दे रखा है सामने, रेंट, अपने बिजनेस का रेंट पे करना जहाँ पे आपका बिजनेस यूनिट है। दूसरा सैलरी पे करना एम्प्लॉयज को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंसेस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। नेट बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर, जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है वही आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस होता है। नेट प्रॉफिट कब कहलाता है? व्हेन इनकम इज हायर, जब आपकी इनकम हायर होगी और आपका एक्सपेंस कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, व्हेन इनकम इज हायर। और नेट लॉस कब होता है? व्हेन एक्सपेंसेस आर हायर एंड इनकम इज लेस, जब आपके एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और आपकी इनकम कम हो जाए, तो आपके बिजनेस को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ पीएनएल भी हमने कल पढ़ लिया था। तो फॉर्मूला फॉर पीएनएल अकाउंट क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अगर ये पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो ये टोटल हमारा नेट प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन इन केस अगर हमारी फिगर नेगेटिव आती है तो हमारा वो नेट लॉस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक हमने लाइन पढ़ी थी, इफ टोटल इनकम इज मोर देन टोटल एक्सपेंसेस वी गेट प्रॉफिट, इफ टोटल एक्सपेंसेस आर मोर देन टोटल इनकम वी गेट लॉसेस, यस। उसके बाद हम पढ़े थे इनकम के एग्जांपल्स लाइक सेल्स की इनकम, बैंक के इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, सर्विस इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, किस किस तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस के अंदर। परचेजेस, जो हम परचेज कर रहे हैं वो भी हमारा एक्सपेंस होता है। रेंट, सैलरीज एंड वेजेस, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, लोन इंटरेस्ट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, दीज आर द एक्सपेंसेस। और हमने वो एक एग्जाम्पल किया था टैली के अंदर, और हमने रीड आउट भी करा था वो एग्जाम्पल, वो आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ठीक है ना, जिसमें हमने रेंट, सैलरी, यूटिलिटी बिल, लोन और एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस देखे थे, जो हमारे टोटल एक्सपेंस कितने हो गए थे? 64,000 रुपीज, ओके। उसके बाद हमने इनकम के बारे में पढ़ा था कल। इनकम आप सब देख सकते हैं आपके सामने, 70,500 की हमारी इनकम थी पिछली क्लास में। उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन हमने निकाला था। तो हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। 70,500 माइनस 64,000, 6,500 हमारा प्रॉफिट आ गया था, जो कि हमारे टैली के साथ भी मैच हो रहा था। हमारे सॉफ्टवेयर में जो हमने अकाउंटिंग करी थी उसके अंदर हमारा पीनल मैच हो गया था, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक में, व्हाट इज बैलेंस शीट। अभी तक तो मैं आपको रिवाइज करा रहा था पिछली क्लास के बारे में। अब आता है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है? व्हाट इज द बैलेंस शीट? अब बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट अपने नाम से ही पता लग रहा है, बैलेंस और शीट। शीट आप सभी जानते हो शीट क्या होता है। और बैलेंस मतलब बैलेंस करना, दो शीटों को आपस में बैलेंस करना। शीट के अंदर हमको शीट को बैलेंस करना, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। मतलब आपका लेफ्ट और राइट बोथ आर इक्वल्स, उसको इक्वल करना, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन
at a specific point in time. It lists the company's asset, liabilities and owner's equity. अब ये क्या बताता है हमें कि बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आपने पहले पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम बैलेंस शीट भी क्या होती है? हमारी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है, ठीक है ना। तो पीएनएल अकाउंट हमारा वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, और बैलेंस शीट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर हम शो करते हैं कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आज तक हमारे कंपनी की क्या वर्थ है। वर्थ मतलब उसमें कितना वैल्यू है, वर्थ है उसका, ठीक है ना। उसका पता लगता है हमको बैलेंस शीट से, मतलब उसकी कितनी औकात है। अगर आप बिल्कुल लोकल टर्म्स में सीखोगे तो कंपनी की क्या औकात है, क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, वो पता लगता है बैलेंस शीट से। क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है वो एक डेट पर होती है, ठीक है। और जो सर पीएनएल अकाउंट, गुडविल भी यस, गुडविल, गुडविल वर्ड यूज कर यस, सकते हैं इसके लिए? गुडविल, गुडविल, हाँ, गुडविल भी हमारी एसेट होती है, ठीक है ना। गुडविल हमारी क्या होती है? वो भी एक एसेट का पार्ट होता है। गुडविल इज अ एसेट, और एसेट में भी दो तरीके के जो होते हैं ना, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। तो गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। बाकी हम फ्यूचर अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आता है आपका एसेट और लाइबिलिटीज। अब आप लोगों को मैंने बताया भी था एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। एसेट मतलब वो चीजें जो कंपनी के पास अभी अवेलेबल है बिजनेस को चलाने के लिए। एग्जांपल आपके बैंक का बैलेंस। दूसरा आपके पास सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर मतलब क्या? जिसको हमने सेल किया था और उसके बदले हमें पैसा रिसीव करना है, ठीक है ना। जिसको हमने सेल किया था और हमने पैसा नहीं लिया था, हमने क्रेडिट में सेल किया था। आज नहीं तो कल हमारे जो डेटर्स है उनको पेमेंट तो करनी है। एक तरीके से वो हमारे पास क्या है? एज अ एसेट है, और ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं इसको, ठीक है। और सन्डी डेटर भी आप कह सकते हो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे? हमारे लिए एसेट बन जाएगा। और एसेट में क्या पार्ट आ सकता है? आपका कैश, जो आपके पास कैश पड़ा है वो भी आपका एसेट है। आपके पास बैंक का बैलेंस पड़ा है वो भी आपका एसेट है। आपके बिजनेस में इन्वेंट्री पड़ी है, यानी स्टॉक पड़ा हुआ है, वो भी आपके लिए क्या है? वो भी आपके लिए एसेट है। गुडविल, आपके बिजनेस की गुडविल बहुत ज्यादा है, वो भी क्या हो गया? वो भी आपकी कंपनी के लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। अब गुडविल का आपको सिंपल, जैसे अभी गुडविल नाम ले ही लिया तो मैं आपको गुडविल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब गुडविल अगर सिंपल तरीके में समझा जाए, व्हाट इज गुडविल? अब आप देखो, मान लो एग्जांपल के लिए हमारे कीर्ति नगर में एक शॉप है, ठीक है। अब शॉप में मान लो स्पेशल शॉप जो है हमारी ग्रोसरी की शॉप है, ठीक है। अब जो ग्रोसरी की शॉप है वो हमारी 50 गज की, एक ग्रोसरी की शॉप है 50 गज की है वो, ठीक है। अब उसकी जो ग्रोसरी की जो वैल्यू है, मतलब उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जब अगर हम उसके बगल में 50 गज का एक और प्लॉट है, अगर हम उस प्लॉट को खरीदने जाते हैं, उसके बगल वाले को, जो ग्रोसरी शॉप के बगल में एक प्लॉट है 50 गज का, उसको अगर हम खरीदने अभी जाएंगे तो उसकी वैल्यू होगी 10 लाख रुपए, ठीक है। अगर वहां पे कोई भी दुकान, कोई भी एरिया परचेज करते तो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए होगी। लेकिन जब हम ग्रोसरी को परचेज करने जाते हैं, ग्रोसरी की शॉप को परचेज करने जाते हैं, तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 15 लाख रुपए। तो अब आप पूछोगे कि 10 लाख रुपए की शॉप थी, लेकिन 15 लाख रुपए क्यों हम उसको पे कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए की उस दुकान की खुद की वैल्यू है, गुडविल है। अब गुडविल कैसे? एग्जाम्पल के लिए, आप ग्रोसरी की शॉप आपको छोड़कर जाएगा, तो उसके पास जितने भी कस्टमर जो बने हुए हैं मार्केट में जो चल रहे हैं, वो तो वहीं पर परचेज करने आएंगे ना ग्रोसरी का। आपको नए कस्टमर क्रिएट थोड़ी करने पड़ेंगे। वो तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी आएंगे, क्योंकि वो शॉप बहुत पुरानी थी। तो जो पुरानी टाइम की जो मेहनत है उस दुकान की, उस शॉप की गुडविल, वो गुडविल ही जो है वो 5 लाख रुपए की वो गुडविल है। और वो गुडविल क्या है? वो बिजनेस के लिए एक एसेट है, जो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को 15 लाख रुपए बेचने में आगे प्रोसेस कर रही है, ठीक है ना। तो वो होती है गुडविल, ठीक है। और बाकी लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि कंपनी को क्या पे करना है फ्यूचर में, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। एसेट मतलब कंपनी को क्या लेना है फ्यूचर में, वो हो गई एसेट। और कंपनी को देना क्या है फ्यूचर में, वो हो गई उसकी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब क्या? एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने लोन लिया, तो कंपनी को आज नहीं तो कल लोन पे करना है, वो कंपनी के लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। कंपनी ने, जैसे हमारी मन्नत फर्नीचर थी, तो मन्नत फर्नीचर में कैस किसने पैसा इन्वेस्ट किया था? हमारे मिस्टर अमन ने इन्वेस्ट किया था। जो मिस्टर अमन ने जो 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, तो कहीं ना कहीं कंपनी को वो पे भी तो करना है।
तो जो उसका कैपिटल अकाउंट है वो भी क्या हो जाएगा कंपनी के लिए, एक लाइबिलिटीज बन जाएंगी। ठीक है। और नेक्स्ट, आपने किसी से जो प्रोडक्ट परचेज किया था और आपने उसे पेमेंट नहीं करी, आज नहीं पेमेंट करी, लेकिन कल को तो आपको पेमेंट करनी है ना। अगर कल को वो पेमेंट करनी है तो एक तरीके से वो आपका दायित्व हो गया, वो आपकी लाइबिलिटी हो गई, तो वो भी क्या हो जाएगा, बिजनेस की हमारे एक लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है। और हाँ, अब नीचे आप देखते हैं बेसिक फॉर्मूला फॉर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब सिंपल आप समझो कैपिटल अकाउंट, जो हमने बनाया था ना टैली में, अमन कैपिटल अकाउंट, जो अमन को हमें फ्यूचर में पे करना है पैसा, जो अमन ने पैसा हमारे बिजनेस में लगा रखा है, वो हो गया ओनर्स की इक्विटी। ठीक है। और लाइबिलिटीज क्या होगी, जो हमको पे करनी है फ्यूचर में, बता दिया मैंने आपको। और एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है। अब आते हैं की पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए। की पॉइंट्स क्या होता है, एसेट। अब एसेट्स क्या होती है, व्हाट द कंपनीज ओन, कंपनी क्या ओन करती है, कंपनी के पास अपने खुद की क्या चीजें हैं, वो कहलाती है एसेट। एग्जांपल बैंक बैलेंस, जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, बैंक बैलेंस पड़ा है हमारी कंपनी में, वो हमारे लिए एसेट है। इन्वेंट्री पड़ी है हमारे पास, मतलब हमने 4-5 चेयर परचेज कर रखी जो हम बेचेंगे फ्यूचर में, वो जो चेयर पड़ी है मेरे बिजनेस के अंदर मन्नत फर्नीचर में, वो मेरे लिए एसेट है। हेलो। नेक्स्ट है फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट क्या है, फिक्स एसेट वो ऐसी एसेट है जो जिसकी वैल्यू हमारी जो है, जिसकी जो पीरियड, जो नंबर ऑफ ईयर्स यूज हम करेंगे, वो 1 साल से ऊपर यूज करेंगे, वो हमारे लिए फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड एसेट है हमारे लिए, जो 1 साल से ऊपर हमें यूज करने वाले हैं, वो भी क्या है, हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, आपकी अगर कोई भी बीच में क्वेरीज आए आप नोट डाउन कर लो, बस अभी ये पीपीटी खत्म होने वाली है थोड़ी देर में। जब ये पीपीटी खत्म हो जाएगी फिर हम डिस्कशन पॉइंट रखेंगे 5 मिनट का, फिर आप सब अपनी क्वेरीज को पूछ लेना। ठीक है। बस मैं फ्लो फ्लो में एक बार इस पहले पीपीटी खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम क्वेरीज पे आएंगे। ठीक है। अब आता है लाइबिलिटीज के ऊपर। लाइबिलिटीज मतलब क्या, वट द कंपनीज ओन। ओन मतलब ऊपर था, या ओज है। ओज का मतलब क्या है कि कंपनी को क्या पे करना है, कंपनी की क्या लाइबिलिटीज है। एग्जाम्पल लोन, अगर कंपनी ने कोई लोन ले रखा है तो कंपनी को फ्यूचर में तो पे करना ही होगा, तो वो कंपनी के लिए लाइबिलिटीज बन जाएगा। ठीक है ना। बाकी पेबल्स, पेबल्स का मतलब वही हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, कि हमने किसी से मटेरियल परचेज करा और उसको हमने पेमेंट नहीं करी, तो आज नहीं करी पेमेंट, बट फ्यूचर में तो आपको पेमेंट करनी है ना, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो आपके लिए एक पेबल बन जाएगा, मतलब वो आपके लिए एक लाइबिलिटीज बन जाएगी। और ओनर्स इक्विटी क्या होता है, द ओनर स्टेक इन द बिजनेस। ओनर स्टेक मतलब ओनर का हिस्सा। अब जरूरी तो नहीं है बिजनेस में एक ही ओनर हो, 3-4 ओनर भी हो सकते हैं। अगर 4 ओनर है, सबकी बराबर बराबर प्रॉफिट रेशो है, मतलब 25-25% चारों लेंगे, तो सबका स्टेक कितना हुआ, 25% सबका हो गया, चारों बंदों का हो गया। ठीक है। और अगर एक ही मालिक है तो 100% स्टेक उसका हो गया। तो द ओनर्स स्टेक इन द बिजनेस इंक्लूडिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स, दैट इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग कैपिटल। अब कैपिटल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कैपिटल क्या होता है, जो ओनर अपने पास से पैसा लगाता है, वो हो गया ओनर की कैपिटल, लिखा है ना कैपिटल इन्वेस्टेड। और दूसरा हो गया रिटेन्ड प्रॉफिट्स। अब रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक पूरा साल बिजनेस चला, बिजनेस चलने के बाद हमारा 6,500 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वो तो एक महीने का हुआ था, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब 6,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, वो प्रॉफिट हमें बांटना पड़ेगा, जो जो कंपनी के मालिक हैं, तो कंपनी की उसमें भी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि रिटेन प्रॉफिट जो होते हैं ना, बचे हुए प्रॉफिट जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ओनर्स की इक्विटी होती है, मतलब ओनर उसके भी मालिक होते हैं। ठीक है ना। अब आपने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो आपको प्रॉफिट का भी तो हिस्सा मिलेगा ना, तो वही चीज है इसके अंदर। अब एसेट्स के कुछ एग्जांपल आपके सामने है, अकाउंट रिसीवेबल, जो हम बात करते हैं डेटर्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल। अब इन्वेंट्री में देखो तीनों चीजें यहाँ पे आ सकती है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, फिनिश गुड्स हो, वो तीनों ही चीजें आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एसेट है। और अब मुझे, अभी चलो अभी तो टाइम है। अब तीसरा हमारा आता है फर्नीचर। अगर फर्नीचर देखो, अभी हमारा जो बिजनेस है मन्नत फर्नीचर का, उसका बिजनेस फर्नीचर बनाने का ही है। तो अगर मन्नत फर्नीचर का बिजनेस मन्नत फर्नीचर बनाने का ही है, तो वो उसके लिए परचेज हो जाएगी।
परचेज का मतलब क्योंकि उसी में वो डील कर रहा है। लेकिन अगर वो कोई, अगर मान लो मेरा एक अकाउंटिंग का बिजनेस है, मैं अकाउंट्स बनाता हूँ, मेरा अकाउंटेंट हूँ, मैं अकाउंट सारी अकाउंटिंग करता हूँ, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सबकी फर्म के ऑडिट करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा काम है। तो मैं अपने बिजनेस के लिए अगर मैं फर्नीचर परचेज करता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, फिक्स एसेट बन जाएगा। वहीं अगर वो काम ही मेरा फर्नीचर बनाने का है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरे लिए स्टॉक बन जाएगा। तो ये स्टॉक होगा या फिक्स एसेट होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस एंटिटी क्या है। अगर मन्नत फर्नीचर के नजरिए से देखा जाए, तो फर्नीचर उसके लिए क्या है, स्टॉक है। लेकिन वही अगर वो कोई दूसरा बिजनेस है और अपने बिजनेस के लिए वो यूज करना चाहता है फर्नीचर, अपने कस्टमर्स को बैठने के लिए या अपनी मीटिंग्स को हेल्ड करने के लिए, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, फिक्स एसेट। ठीक है, अब आते हैं लाइबिलिटीज के ऊपर। अब लाइबिलिटीज क्या होता है, लाइबिलिटीज में हम पढ़ेंगे अकाउंट्स पेबल क्रेडिटर। ये भी आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। 20,000 क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, जैसे पिछले वाले हमारे एग्जांपल में था ना कि हमने 20,000 रुपए की चेयर परचेज करी थी, तो वही सेम है कि अब उसको हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, तो वो एंट्री है। अब आते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब क्या, अपने जो ओनर है, हमारे जो बिजनेस के जो ओनर्स है, उनका पैसा। एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट, जो उन्होंने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए, और दूसरा नेट प्रॉफिट, जो बिजनेस में चला आ रहा प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट में भी उसकी भागीदारी होगी, तो वो उसकी ओनर्स की इक्विटी में ही कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब पीपीटी वाला काम तो हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, मतलब जो बेसिक एसेट और लायबिलिटीज एक्सप्लेन करना था मुझे, वो हो चुका है, और इनकम एंड एक्सपेंस हम पहले कर चुके हैं। तो अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम टैली पे चलने वाले हैं। हेलो हाँ जी सादिक जी बताइए। सर, मेरा ये डाउट था कि जो हमने कैपिटल अमाउंट जो ली थी अमन कैपिटल नाम से, वो 5 लाख की वो हमने खुद से ली थी, मतलब खुद से वो ली जो थी मतलब? वाउचर में आपने एंट्री करी थी ना, बैंक डेबिट और अमन हम्म कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हम्म। 5 लाख, तो वो हाँ जी। एंट्रीज में नहीं था, तो वो एंट्री मतलब हमने खुद से ली थी, 5 लाख में बिजनेस स्टार्ट किया, तो मतलब हाँ हाँ, वो एंट्री हम ही लेंगे ना। हम अब जो हाँ मन्नत फर्नीचर का अकाउंट होगा, तो जब अमन हमारे पास, वो अपने जब अमन जब अकाउंट खुलवाएगा मन्नत फर्नीचर का बिजनेस ओपन करने के लिए, तो जी जी अमन का अलग अकाउंट होगा, हमारे बिजनेस का अलग अकाउंट होगा। ठीक है। तो जब अमन इन्वेस्ट करेगा 5 लाख रुपए, तो वो हमारे मन्नत वाले अकाउंट में 5 लाख रुपए डेबिट हो जाएंगे। ठीक है। और जी 5 लाख रुपए से कैपिटल बन जाएगी लाइबिलिटीज, क्योंकि हमने अमन से पैसे लिए हैं ना, तो कल को हमें अमन को देना भी होगा। ठीक है। और उसी कैपिटल की भागीदारी हमारे अमन की हो जाएगी। ठीक है। तो ये बात है। ठीक तो अब हम ठीक है। चलते हैं टैली पे। आई थिंक मेरे ख्याल से एसेट लायबिलिटी सबको क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो अब हम चलते हैं टैली के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं टैली पे। तो टैली आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको कंपनी कैसे ओपन करनी है। ठीक है, तो हम उसी तरीके से फिर से आज टैली ओपन करेंगे। ठीक है। बट टैली ओपन करने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एक वीडियो दिखा दूं। अब आवाज कैसे आएगी वो देखने वाली बात है। मुझे बस आप ये कंफर्म कर देना आपको वॉइस आ रही है कि नहीं। क्या आप सभी को आवाज आ रही है वीडियो की? नो सर। नो सर, अभी आवाज नहीं आ रही है। विक्की जी शेयर में जाके एडवांस में वीडियो से चलाओ तो आ गई आवाज। बिजनेस में चाहिए स्पीड, डिपेंडेबिलिटी और आप कौन? अरे मैं बिजनेस मैनेजर यार। हाँ सर, मैं शूट पे हूँ। टैली प्राइम हाँ हाँ हाँ। बिग फैन। तब तो हमारे फैन हैं।
नो सर, बिग फैन ऑफ टैली प्राइम। टैली प्राइम ही तो बिजनेस में हाँ हाँ सब सेट रखता है, तभी तो डिसीजंस बोल्ड होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इंडियाज फेवरेट बिजनेस सॉफ्टवेयर। अरे मोहन, हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? Tally Prime, behind bold businesses, official business management platform, RCB. आई होप आप सबको वीडियो दिख गई। यस सर। हेलो, Yes, sir. यस सर। हाँ यस सर। जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई वो आपको दिख गई ना, अच्छे से आवाज आ रही थी? जी जी आवाज आ यस रही सर। है। यस सर। तो अभी आप सभी ने देखा होगा, देखो उस वीडियो में उन्होंने टेली प्राइम का एडवर्टीजमेंट करा अभी आईपीएल में। हाँ जी। तो आप देख सकते हो टेली प्राइम की कितनी ज्यादा मार्केटिंग है, कितने ज्यादा मतलब उसके यूजर्स हैं। तो टेली प्राइम जो है वो धीरे धीरे मार्केट को और ग्रैब कर रहा है, क्योंकि ये एक टेली प्राइम जो है कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। एक तो इजी है, सिंपलिसिटी है इसके अंदर, और जो इसका इंटरफेस है वो काफी यूजर फ्रेंडली है। तो इसीलिए जब मुझे ये पॉइंट दिखा आपकी क्लास के दौरान, मुझे ये वीडियो दिखी, मुझे ये ऐड दिखा, तो मुझे लगा ये चीज मुझे आपको दिखानी चाहिए ऐड। तो इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो रखी थी, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अब हम जा रहे हैं टेली प्राइम को ओपन करने, तो फिर जहाँ पे मैंने डाटा सेव कर रखा था सेम वही डाटा सेव करना है, डाटा ओपन करना है, और वही लोकेशन सेलेक्ट करनी है, कॉपी करना है, फिर आपको टेली प्राइम को ओपन करना है। और फिर आपको वही सेम प्रोसीजर, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, एंटर, एंड देन यू हैव टू पेस्ट। जो आपने लोकेशन कॉपी की थी ना वहां पे आपको फिर पेस्ट कर देना है सर्च बार में, ठीक है। पेस्ट करते ही यू हैव टू प्रेस एंटर, एंड देन अगेन एंटर, बिकॉज आपकी देखो कंपनी शो हो रही है। आपको फिर एक बार वंस अगेन यू हैव टू एंटर द सेम, एंड देन योर कंपनी विल ऑटोमेटिकली ओपन, या उसके बाद अब आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है। तो आप फिर से वो आपको कल वाला प्रॉफिट देखना है तो आप सीधा जाएंगे रिपोर्ट्स में और जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 6,500 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो जो हमने कल किया था, तो कल सारिक ने पूछा था या किसने पूछा था कि सर वो डिटेल सर। में प्रॉफिट यस देख सर। नहीं पा रहा था, है ना। यस तो सर। देखो डिटेल देखने के लिए ना आपको देखो, सबसे पहले आपको राइट साइड में देखो, आपको एक एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डिटेल करके। आप जब ओल्ट F1 करेंगे ना, जी। F1, तो आपके पास ना डिटेल में खुल जाएगा, ठीक है। और डिटेल में ओपन होने के बाद आपको सारी फिगरें बिल्कुल सिंपलीफाई होके दिखेंगी। अब देखो, अब यहाँ पे ना आपको सब कुछ बड़े इजी तरीके से दिखेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो देखो सेल आ रहा है ना, सेल्स के हम्म। अंदर देखो सेल्स विदाउट जीएसटी शो हो रहा है कि जो हमने हाँ जी। सेल करी थी वो आपका सेल दिखने लगा। डायरेक्ट इनकम में आपकी सर्विस इनकम थी, वो भी आपको दिखने लगी। और हाँ, हमेशा याद रखना आप, जब भी हम पीएनएल अकाउंट देखते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में जो होता है वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और राइट साइड में जो होता है वो हमारी इनकम्स होती है। इनकम होती है। इनकम्स होती है, ठीक है ना। ये एक यस। स्टैंडर्ड है, ये हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो और ये सर देखो, नॉमिनल अकाउंट में होता है ना, मतलब। हाँ नॉर्मल अकाउंट्स में। और हाँ। देखो, जो ग्रोस प्रॉफिट से पहले का जो खर्चा होता है, दिस इज आर ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट मतलब क्या? कि ग्रोस प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें अभी प्रोडक्शन वाले खर्चे या फिर जो बिजनेस से रिलेटेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड वाले खर्चे हैं, वहां तक की जो वर्किंग होती है उसमें निकलता है ग्रोस प्रॉफिट। और जब बिजनेस का आप सारे एक्सपेंस को कंसीडर कर लेते हो, तो लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है 6,500 रुपीज का, ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तब आता है जब आप प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट को लगाते हो, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर काम किए वाले जो खर्चे होते हैं ना वही यहाँ पे यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, जो हमने कल भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर लग रही है। जब हम कटिंग कर रहे हैं तो उस कटिंग की जो मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रही है। तो हर प्रोडक्ट पे जितना प्रोडक्ट आप कटिंग करोगे
उतनी ज्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पर प्रोडक्ट पे यूज अलग अलग हो रही है, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है ना। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट से पहले पहले आ जाते हैं। वैसे ही आपके वेजेस हो गए, जो लेबर लगे, अब लेबर तो बना रहे हैं ना, कटिंग कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं चेयर्स को, सोफे को, फैब्रिक को लगा रहे हैं, फेविकोल लगा रहे हैं, वो सब क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गई। और डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद हमारा क्या आता है, ग्रोस प्रॉफिट। और उसके बाद अगर हम इसमें माइनस कर देंगे हमारे नॉर्मल एक्सपेंडिचर, एग्जांपल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, लोन इंटरेस्ट और रेंट, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन हमारे बिजनेस के ही खर्चे हैं, जब पूरे खर्चों को आप माइनस कर दोगे, जो अल्टीमेट में आपके पास प्राप्त हो जाएगा लास्ट में, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। और हमारे बिजनेस में देखो, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी करी थी। ठीक है ना, हम सिर्फ एक्सपेंस का नहीं सोचते, हम इनकम बनाने का भी सोचते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है ना। तो अभी आपकी फ्यूचर में भी एक क्लास होने वाली है, हाउ टू मैनेज योर इनकम, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस। तो आप उसमें भी बड़ी चीजें सीखोगे कि आपको किस तरीके से आपको अपनी इनकम को मैनेज करना है, कि आप मैक्सिमम उसका आउटपुट ले पाओ। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया है कि हमारे पास ज्यादा पैसा है, हमने एफडी में, एफडीआई में इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट किसी में भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड, शेयर, ठीक है, या फिर आपका आजकल नहीं चलता क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी हो गई, और बड़ी चीजें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है। और हो गया आपका रेंटल इनकम, आपने एक और बिजनेस यूनिट परचेज किया था, उसको आपने रेंट पे दे दिया था, तो वहां से भी जो इनकम आ रही है वो भी आपके बिजनेस की इनकम है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट इनकम होती तो वो ऊपर आ जाती, इसलिए वो नीचे आ रही है ग्रोस प्रॉफिट के बाद। जो भी इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस होंगे वो ग्रोस प्रॉफिट के बाद होंगे, और ग्रोस प्रॉफिट से पहले वाले जो भी एक्सपेंस और इनकम होंगे वो डायरेक्ट होंगे, और बाद में इनडायरेक्ट होंगे। ठीक है। अब हमारे पास देखो, पीएनएल अकाउंट तो रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज का। तो सिंपल आप एस्केप करके बैक आ जाओ, बैक आ जाओ। और बैक आने के बाद आपको बैलेंस शीट आपको दिख रही होगी रिपोर्ट्स में, फर्स्ट ऑप्शन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप ओपन करोगे तो बैलेंस शीट में आप सभी देख सकते हैं कि हमारे कैपिटल में कितना पैसा आ रहा है, 5 लाख रुपए। जो अमन ने क्या करा था, अमन ने इंट्रोड्यूस करे थे 5 लाख रुपए, मतलब अमन ने मन्नत फर्नीचर को दिए थे। तो 5 लाख रुपए हमें अभी अमन को देने हैं, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में आ रहा है। और हाँ, जैसे एक्सपेंस हमारा लेफ्ट साइड में होता है ना, तो एसेट और लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमारी जो लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट साइड में होती है। ठीक है ना। तो ये रहा कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट में आप एंटर करोगे अमन कैपिटल अकाउंट, मतलब अमन को हमें 5 लाख रुपए मन्नत फर्नीचर को देने हैं, इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी में आ रहा है। दूसरा हमारी कौन सी लाइबिलिटी है, अब देखो करंट लोन, तो आप सभी जानते हो लोन क्या होता है, जो हमें लोन पे करना होता है। अब आता है करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइबिलिटी जो करंट है। करंट का मतलब है बिल्कुल हाल ही हाल, हाल में जो लाइबिलिटीज है वो, हाल का मतलब ये समझो कि जिसको हमें 1 साल के अंदर लाइबिलिटी को पे करना है। द लाइबिलिटी विच वी हैव टू पे विद इन अ ईयर, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर देनी है, 1 साल के विद इन द ईयर देनी है हमें, वो होगी हमारी करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, ऐसी लाइबिलिटी जो हमें 1 साल में नहीं देनी, वो 1 साल के बाद हमें देनी है, तो वो होगी नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है ना। जैसे हम यूज करते हैं ना, आज की करंट न्यूज क्या है, आज की करंट सिचुएशन क्या है, करंट का मतलब आज की ताजा खबर, लेटेस्ट। तो वही आप समझो, लाइबिलिटी जो है अगर वो करंट लाइबिलिटी है, मतलब आपको 1 साल के अंदर उस लाइबिलिटी को पे करना है। अगर वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, मतलब 1 साल के अंदर नहीं पे करना, आपको 1 साल के बाद पे करना है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सब जान ही कर चुके हो। और फिक्स एसेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसका जो यूज है, जिसका जो यूज करने का जो टाइम है वो अगर 1 साल से ऊपर हो जाता है, तो वो हमारी ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, फिक्स एसेट बन जाती है। ठीक है ना, जो कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। आई थिंक यू गॉट इट। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है करंट एसेट। करंट एसेट भी सेम वैसे ही हो गया, ऐसी एसेट, ऐसे हमारे बेनिफिट्स, ऐसे हमारी एसेट जो 1 साल के अंदर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, वो होगी हमारी करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट का मतलब क्या हुआ, ऐसे एसेट या ऐसे बेनिफिट कंपनी के लिए जो 1 साल में नहीं मिलेंगे, वो 1 साल के बाद कंपनी को रिसीव होंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट। जैसे होगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं होते, जैसे लोन ले लिया आपने, या लोन आपने किसी को दे दिया,
1 साल के ज्यादा टाइम के लिए, तो हो गया लॉन्ग टर्म। ठीक है, उस तरीके से शॉर्ट टर्म, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट। करंट का मतलब सिंपल समझ लो 1 साल के अंदर, और नॉन करंट हो गया तो 1 साल के बाद, मतलब 1 साल से ऊपर चला जाएगा वो, चाहे वो लाइबिलिटी हो या चाहे वो एसेट हो। अब आते हैं इनके हेडिंग के अंदर। देखो कैपिटल अकाउंट हमने पढ़ ही लिया था, अमन्स की कैपिटल। अब करंट लाइबिलिटी में आते हैं। अब करंट लाइबिलिटी में क्या आ रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर आपको बताया था ना मैंने, कि जिसको हमको पैसा पे करना है, वो हमारी लाइबिलिटी हो गई। सन्ड्री क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी कौन हो गया? शीतल हो गई। क्यों शीतल हमारी लाइबिलिटी में क्यों है, कौन बताएगा? कल की क्योंकि क्लास हमें है। उन्हें पैसा देना है, मतलब हाँ, और हमें पैसा क्यों देना है शीतल को? क्योंकि हमने उनसे मतलब जो हमने चेयर परचेज करी थी हमने। जो करी थी, हाँ, चेयर हमने शीतल से क्या किया था? हमने शीतल से परचेज चेयर किया था। परचेज करी थी। यस, तो इसलिए हमें शीतल को पैसा भी देना है, इसलिए शीतल हमारे किस में आ रही है? करंट। ये तो सन्ड्री हम क्रेडिटर्स। करंट लाइबिलिटी के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर शीतल आ रही है। ठीक है, क्योंकि जी। हमें उनको पैसा पे करना है। अब आते हैं पीएनएल। पीएनएल अकाउंट आप सभी ने देख ही लिया। अब आते हैं फिक्स एसेट में। अभी हमारे पास कोई फिक्स एसेट नहीं है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। उसके बाद आते हैं करंट एसेट। करंट एसेट में क्या आ गया आपके? देखो, एक तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। जो अभी हमारे गोडाउन में, अभी जो हमारे बिजनेस यूनिट में जो भी एसेट्स पड़ी हुई है, जो भी हमारे स्टॉक पड़े हुए हैं, मान लो हमने जो चेयर परचेज करी है, अभी हमने बेची नहीं है, वो चेयर हमारे गोडाउन में हमारे बिजनेस यूनिट के अंदर पड़ी है, तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए एसेट है, हमारी क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ? आज तक का अप टू डेट, मतलब अब तक का स्टॉक, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग एसेट। उसी तरीके से हमारे पास क्या है? सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री डेटर में हमारे आ रहा है शारिक खान। अब यस शारिक सर। खान क्यों आ रहा है सन्ड्री डेटर में? क्योंकि क्या नाम है, हमने क्या नाम कि है हमने उनसे सेल्स करी थी। करिए हाँ, वो, हमने मतलब शारिक खान को तो सेल हम करा था, लेकिन शारिक खान ने हमें पैसे नहीं दिए थे। नहीं दिए, शारिक खान हमें ने उनसे जब पैसे देते हैं। हाँ, तो शारिक खान ने जब हमें पैसे नहीं दिए, तो वो हमारे एसेट में दिखने लगे। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल शारिक खान हमें पैसा पे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो डेटर्स में आ गए। नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में जब आप एंटर करोगे तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। अभी तो देखो बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन कंपनी में जरूरी तो नहीं है कि वो एक ही अकाउंट हो। कंपनी में तो 5 अकाउंट भी हो सकते हैं। तो जब आपके 5 अकाउंट होंगे तो बैंक अकाउंट में पांचों अकाउंट दिख जाएंगे। मान लो HDFC, PNB, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसइंड बैंक, ये सारे बैंक अगर आपके पास होंगे, वो सारे बैंक विजिबल हो जाएंगे, जितने भी आपके बैंक होंगे। ठीक है, अभी तो हमने एक ही बैंक अकाउंट बनाया है। ठीक है, अब एंटर करोगे, फिर आप एंटर करोगे तो बैंक की पूरी कहानी आ गई। अब बैंक की क्या हो गई? पूरी कहानी आ गई। ये होगा बैंक का लेजर। जो कल हमारे PK मल्होत्रा सर नहीं पूछ रहे थे कि लेजर और वाउचर क्यों अलग अलग होते हैं? देखो, तो मैंने आपको बताया भी था कि लेजर क्या होता है। लेजर क्या होता है? एक लूप बनाता है, एक एडिट लॉग बनाता है। लॉग का मतलब क्या है? लेजर मतलब जैसे आप बैंक का लेजर देख रहे हो आप, तो बैंक की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करेगा वो, कि बैंक में कितने पैसे आए, कितने बैंक में इनवर्ड इनफ्लो हुआ कैश का, फिर बैंक में कितने आउटफ्लो हुए, बैंक से कितना पैसा गया। लेकिन उस एंट्री को करता कौन है? वाउचर। ठीक है, तो वाउचर में हम एंट्री को करते हैं, और लेजर शो करता है कि उसका स्टेटस क्या है। और अगर एग्जांपल लोगे, तो एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए हो गया आपकी पासबुक। आपकी जो पासबुक पे जो प्रिंटिंग होती है ना, कि इतना अमाउंट डेबिट हो गया, इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया, वो आपका क्या हो गया? आपका एक बैंक लेजर हो गया। लेकिन जो ट्रांजेक्शन की जो स्लिप होती है, जैसे जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, जो स्लिप होती है ना, वो आपका वाउचर है। तो ट्रांजेक्शन करना वाउचर होता है, लेकिन उस वाउचर को, जो वाउचर के अंदर जो एंट्रीज होती हैं, उसका एक लॉग बनाना, वो होता है लेजर। तो ये बैंक का लेजर है। अब बैंक में आप देखो, सिंपल कितनी अच्छी लग रही है बैंक के हमारे देखो बैंक में कितना अच्छा दिखेगा आपको, कि बैंक में सबसे पहले हमने 5 लाख रुपए कैपिटल में इंट्रोड्यूस करा, मतलब 5 लाख रुपए हमने अमन से लिए। देखो अमन कैपिटल अकाउंट आ रहा है, तो इसका मतलब है 5 लाख रुपए हमने अमन से ले लिए। 5 लाख लेने के बाद देखो, फिर हमने उस अपने अकाउंट से कितना कितना एक्सपेंस किया। सबसे पहले हमने 10,000 रुपये का रेंट दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने भी 25,000 रुपये का क्या किया? हमने फिर वेजेस पे किए। फिर उसके बाद 2,000 रुपये का हमने क्या पे किया? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया। फिर हमने लोन इंटरेस्ट पे किया। फिर हमने एडवर्टाइजिंग के खर्चे पे करे। तो कोई ऑटोमेटिक 5 लाख रुपए से माइनस होते जा रहे हैं। और उसके बाद पैसे रिसीव भी करे। कैसे रिसीव करे? FD का इंटरेस्ट मिल गया हमको, वो हमारे अकाउंट में डेबिट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें रेंटल इनकम मिली, वो भी क्या हो गया? डेबिट हो गया।
फिर हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के पैसे आए, जो हमने इन्वेस्ट करा था उससे पैसे आए, वो भी डेबिट हो गया। फिर हमारी सर्विस इनकम का भी पैसा आ गया, तो वो भी डेबिट हो गया। अब 5 लाख रुपए में से आप सिंपली देखो, 5 लाख में से पहले ये माइनस करो, 10, 25, 2, 2, 5, और फिर इसमें ऐड करो 500, 15,000, 2,000, 3,000। तो आप जब नेट कर दोगे तो आपके बैंक में जो बैलेंस बचा हुआ है वो आपको नीचे दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस देखो ये रहा, कि आपके अकाउंट में 4,76,000, 1 मिनट, आपके अकाउंट में 4,76,500 बचे हुए हैं, ठीक है ना। ये तो आपके अकाउंट में क्या हो गया, 4,76,500 बचे हुए हैं। और देखो करंट टोटल में देखो क्या आ रहा है, करंट टोटल का मतलब क्या हुआ कि 5,20,500 रुपए आपके अकाउंट में टोटल आए, 5 लाख कैपिटल के और बाकी 20,500 रुपए आपके इनकम के। और क्रेडिट साइड के करंट टोटल में आप देखोगे तो 44,000 रुपीज का क्या आ रहा है, बैलेंस। अब 44,000 बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि टोटल आपके अकाउंट में 44,000 रुपीज क्या हुए, क्रेडिट, मतलब कम हो गए, तो वो क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी बैंक की ट्रैकिंग हो जाती है और हमें लास्ट में पता लगता है हमारे बैंक में 4,76,500 का बैलेंस मेंटेन है। ठीक है जी। अब हमारा पूरा वैसे तो अब खत्म हो चुका है, हमारा बैलेंस शीट भी खत्म हो चुका है, लेकिन अब देखो बैलेंस शीट से रिलेटेड आप सबके सामने मैंने एंट्री नहीं कराई, तो मैं एक एंट्री करा देता हूँ। अब एंट्री क्या कराता हूँ, शीतल जी को हमको पैसे देने थे, चलो हम शीतल जी को पैसे देते हैं, और शीतल जी को पैसे कितने देने हैं, 20,000 रुपये। तो अभी हमारे पास बैंक में कितना पैसा आ रहा है, 4,76,500 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब शीतल को जब हम 20,000 रुपये दे देंगे तो हमारे अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे, फटाफट बताओ। क्या हो गया, चार माइनस लाख में छप्पन कितना पड़ हजार रहा है, कितने, 56 4,56,000। 4,56,500 रुपये बचेंगे ना। चलो लेट्स डू द एंट्री, यस। बैक 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 करके आप स्केप करके पीछे आ जाओगे, बैक बैक। उसके बाद आपको आना वाउचर में, जैसे हम पहले एंट्री कर रहे थे। अब वाउचर पे एंट्री कर दूं, आप फटाफट मेरे को बिल्कुल आप इसको एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, एंटर कर दूं वाउचर पे। यस सर। अब बताओ, अब यहाँ पे कौन सा वाउचर यूज करना है मुझे, मुझे शीतल को पेमेंट करनी है तो कौन सा पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर पेमेंट पेमेंट वाउचर, वो पेमेंट ऑटोमेटिक खुल वाउचर। रहा है। अब पेमेंट वाउचर में देखो अकाउंट का ऑप्शन खुल रहा है, अकाउंट में कौन सा, किस अकाउंट से पेमेंट कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट से, किससे, बैंक बैंक। तो बैंक अकाउंट मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ पर किसका नाम आएगा, किसको पेमेंट करनी है, शीतल शीतल शीतल। शीतल। शीतल का मैंने अकाउंट क्लियर एंटर किया, और शीतल को हमें कितने पैसे देने हैं, 20,000 20,000। एक और चीज बताता हूँ, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो ना, तो वहां पे देखो क्लोजिंग में 20,000 का बैलेंस देखो यहाँ पे शो भी हो रहा है, करंट बैलेंस शीतल का 20,000 है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, करूँ एंटर। जी सर। अब यस अगेंस्ट का मतलब है कि किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हो, मैंने करा 001, जो 001 इनवॉइस नंबर था, मैं उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने एंटर किया, फिर एंटर किया, फिर एंटर किया, देखो अब करंट बैलेंस शीतल का जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि अब, इसका मतलब ये है कि वो हमारे जो क्रेडिटर में से ना शीतल का अकाउंट हट जाएगा। ठीक है, और फिर एंटर, आपको एंटर एंटर करना है। अगर आपने चेक से पेमेंट करी तो चेक की डिटेल डाल दो, या फिर आप कुछ जो भी है जिससे आप पेमेंट करो वो डिटेल डाल सकते हो। नरेशन में डाल दो बीइंग अमाउंट पेड टू शीतल। ठीक है जी, जब शीतल में एंटर करोगे, अब ये क्या हुआ, शीतल की पेमेंट, शीतल को पेमेंट हो गई। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में, रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट में चले गए, और जाने के बाद देखो करंट लाइबिलिटी जीरो हो गई ना। जीरो हाँ क्यों सर। हुई, क्योंकि शीतल का बैलेंस खत्म हो चुका है। अब हमें चेक करना हमारा बैंक बैलेंस क्या 5,00,000 4,56,000 हुआ या नहीं। चलो लेट्स सी, तो हम करंट एसेट में गए, करंट एसेट में बैंक अकाउंट में गए, और फिर हमने बैंक अकाउंट खोला, फिर एंटर किया, तो देखो अब हमारे बैंक में कितना बैलेंस आ रहा है, चार लाख 56,500। 56,500। इसका मतलब क्या है कि हमारा बैंक बैलेंस 20,000 रुपये से कम हो गया। देखो ये शीतल वाली एंट्री है, ठीक है ना। इसी तरीके से, अब इसी तरीके से हमें साकिब से पैसे लेने हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब हमें सारिक से पैसे लेने हैं। ठीक है, फिर मैंने बैक किया, फिर से सेम हुई, वाउचर्स में गया। अब हमें पेमेंट करनी है, रिसीट करनी है साकिर से, रिसिप्ट
टिप। रिसीट रिसीट करनी है। और रिसीट का देखो शॉर्टकट की बगल में क्या आ रहा है, जल्दी बताओ शॉर्टकट की क्या आ रहा F6 है? ओल्ड एफ F6। तो फिर F6 आपको क्या प्रेस करना है? F6। F6 प्रेस करते देखो आपका वाउचर बदल के रिसीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, आपको किस अकाउंट में पैसा लेना है। देखो आपके पास 5 अकाउंट होंगे तो आप जिसमें पैसा मिलेगा उस अकाउंट को सिलेक्ट करोगे। बट हमारे पास तो भी एक ही बैंक अकाउंट है तो फिर बैंक अकाउंट एंटर करेंगे और फिर लिखेंगे सकीर, सारिक, तारिक सॉरी प्लस। सारिक, सारिक, हाँ हाँ सारिक, सारिक। आपका इतना अच्छा नाम है ना तो सर बार बार कंफ्यूजन हो जाती है आपको। थोड़ा सा नाम बहुत यूनिक है ना आपका, अच्छा हाँ नाम है। जी। तो सारिक खान को हमने सेलेक्ट किया और देखो अभी करंट बैलेंस 50,000 आ रहे हैं सारिक खान के। फिर मैंने 50,000 रुपीज की एंट्री करी और फिर मैंने यस। अगेंस्ट किसके करा, जो आपने बिल रेज किया था 2 नंबर का बिल, ठीक है, मतलब टू इनवॉइस नंबर 2। तो जब मैंने एडजस्ट करा तो देखो सारिक खान का बैलेंस 0 हो गया। और फिर आपको डिटेल डाल देनी है और फिर आपने लिखा बीइंग अमाउंट, सॉरी बीइंग का हो गया, बीइंग अमाउंट फ्रॉम शारिक। रिसीट, फ्रॉम रिसीट फ्रॉम शारिक। हाँ। तारिक, तारिक खान, ठीक है। अब एंटर कर दोगे, एंटर कर दोगे तो आपका अब क्या हो जाएगा, करंट एसेट से डेटर भी हट जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में आप आए, अब देखो करंट एसेट में आपका डेटर, डेटर क्या हुआ, 0 हो गया ना, क्योंकि जीरो आपने जीरो। पेमेंट रिसीव कर ली। अब कौन बताएगा अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, फटाफट बताओ। अरे देख लोगे आप, बताओ जल्दी बताओ। अब अकाउंट में कितने मतलब पैसे बचे चार हैं लाख बताओ। 4,05,000 4,05,000 5,500। 4 लाख या 4 लाख, सोच के बताओ फटाफट कितने पैसे हो गए हमारे अकाउंट में। 4,06,500। 4,06,500। ऐसे पाँच कैसे? लाख 6,500। कितने? नहीं 5,06,500। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास आएगा ना तो मतलब हमारे पास आए हैं पैसे तो फिर हमारे पास हो गए 5 लाख। 5 लाख के ऊपर होगा। 6,500। 6,500। हाँ हाँ हाँ, देखो इसमें छह हजार कंफ्यूजन पाँच नहीं होनी है, ठीक है। 5 लाख कितने हुए, 5,06,500, 6,500। ठीक है। नीचे है टोटल ना, में तो लिखा देखो यहाँ हुआ पे तारीख से हमें पेमेंट रिसीव भी हो गई, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट है वो रन करती है। बैलेंस देखो आपका पीनल अकाउंट सेम रहा, क्योंकि देखो किसी को पेमेंट देने और लेने में कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है। तो बैलेंस शीट में इफेक्ट तो आया लेकिन हमारे प्रॉफिट और लॉस में कोई इफेक्ट नहीं आया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सेम है। बाकी हमारे जो डेटर और क्रेडिटर थे वो खत्म हो गए, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास वाइंड अप होती है। तो आपको जो भी आपको क्वेरीज पूछनी है, आपके लिए स्टेज ओपन है, यू कैन आस्क। और आपको कुछ और भी मतलब रिलेटेड टू वर्किंग लाइफ या कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की हमारी बैलेंस शीट वाला तो टॉपिक खत्म हो चुका है। सर, आई वांट टू आस्क वन थिंग। यस यू कैन। दैट सर, आई एम फ्रॉम लाइक अभी मैंने 12वीं का एग्जाम दिया है और मैं आर्ट्स स्ट्रीम से था 11th में। मैंने बीच में भी कोशिश की थी, एक कॉमर्स के स्टूडेंट थे भैया थे, उन्होंने भी मेरे को थोड़ा बहुत समझाया था। तो मेरे को मतलब फिर अभी यहाँ पर भी सीख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मतलब पूरा ही नॉलेज नहीं आ रहा है उतना जितना बाकी बच्चों को आ रहा होगा, बाकी स्टूडेंट्स को आ रहा होगा। मेरे को थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि मेरा इस फील्ड से मैं नहीं, तो अब कोशिश कर रहा हूँ सीखने की और इंटरेस्ट भी है इसमें, टैली में। अच्छा अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको ना हमने बेसिक की जो हमने जो बेसिक बेसिक चीजें बताई थी, एक बार में तो किसी को भी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको एक्सपेंसेस के बारे में जो हमने पहले पढ़ाया था ना, कि एक्सपेंस 2 तरीके के होते हैं, कैपिटल नेचर और आपके रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंस होते हैं, उस तरीके से आपको डेप्थ में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और जो मुझसे पहले की जो क्लासेस हुई थी, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आपकी जो भी एंट्रीज हुई थी ना पहले, तो वो उस क्लासों को आपको यूट्यूब पे दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जितनी बार आप उसका रिवीजन करोगे, जितनी बार अपनी लाइफ से रिलेट करोगे चीजों को, जैसे एग्जांपल आप घर पे देखो, आपके पास घर में आपने लैपटॉप लिया, तो क्या लैपटॉप 1 साल से ऊपर यूज करोगे या कम यूज करोगे? तो खुद अपना माइंड यूज करो, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीजों को सीखो कि मैं लैपटॉप को 1 साल से ऊपर यूज करूंगा। अगर 1 साल से ऊपर यूज करोगे तो क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, ठीक है ना। और ऐसे आप मान लो कुछ और चीज परचेज करते हो जिसकी वैल्यू 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल आपका और भी जैसे ले लो, कि मान लो आपने कोई पावर बैंक परचेज किया जो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हुआ, 1 साल से कम पहले खत्म हो जाएगा, तो आपका वो एक्सपेंस बन जाएगा रेवेन्यू नेचर का, ठीक है।
फिर आपने पेंसिल परचेज करी, शॉर्पनर परचेज करा, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल लोकल एग्जांपल्स जो आपके रियल लाइफ में चीजें चलेंगी। जब आप इन चीजों को अपने रियल लाइफ से कोऑर्डिनेट करोगे, रिलेट करोगे ना, फिर आपको अकाउंटिंग करने में बहुत मजा आएगा। और अकाउंटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है ना। और कुछ, ठीक है ना, थैंक तो यू सो मजा मच बहुत सर। आएगा इस चीज में। ठीक है गुलशन, देखो अपने आप को ना स्ट्रोंग करना है। तो स्ट्रोंग कैसे करोगे? अपनी चीजों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके, पढ़ पढ़ कर बार बार जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में और मेहनत करो। जब आप मेहनत करोगे, आप बार बार उस चीज को पढ़ोगे, रियल लाइफ से रिलेट करोगे ना, तो अकाउंटिंग करने का मजा अलग आता है। फिर आपका बैलेंस शीट मैच होगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर आप पीएनएल यस। जानोगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना जानोगे। देखो हमने कितनी सिंपल एंट्रीज के साथ अपना पूरा क्वेश्चन किया, कितने अच्छी चीजें सब मैच होगी ना। आप इस लेक्चर को बार बार देखो, आपको सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। बाकी सक्षम रोजगार सोसाइटी आपके सपोर्ट के लिए हमेशा साथ रहेगा, वो यस सबके सर, साथ इसलिए रहता तो है। मैं नोट्स भी हाँ बनाता हाँ, रहता हूँ, जो भी आप बोलते हो तो पूरा नोट्स बना रहा हूँ साथ जी में, कि गुलशन बहुत समझ बढ़िया, में बहुत नहीं आएगा बढ़िया। आप बार बार जैसे, देखता रहूंगा। नोटबुक हाँ है ये क्योंकि बहुत उसको सही है। जब देखता जब भी रहूंगा बार डाउट हो बार। तो आप अपना लेक्चर दोबारा ओपन कर सकते हो। इसीलिए हम यूट्यूब पर लिंक भी डालते हैं कि एक बार ना आप बार बार उस चीज को देखो और लोगों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल को, सक्षम युवा सोसाइटी को। हमें इस सोसाइटी को बहुत आगे लेके जाना है, इंटरनेशनल लेके जाना है, समझ लो गुलशन। और हमारी तरफ यस बहुत सर। से टीचर हैं, मैं भी स्टूडेंट था सक्षम युवा सोसाइटी का। ठीक है, तो यस आप जब सर, आगे बढ़ मैंने जाओगे तो फोटो कहीं ना देखी थी कहीं, स्टार्टिंग में। हाँ जब तो वो वीडियो आप जब, चलते तो उनमें हाँ, अभिषेक सर की 31 फोटो और आपकी 7 से 8 फोटो देखी थी। मैम ने कहा था ना देख कर बताना, विक्की सर हम्म। और अभिषेक की, तो मैं अभिषेक सर की तो बताई थी मैंने। ठीक है ना, तो जैसे आज हम टीच कर रहे हैं, कल को आप यहाँ पे टीचर बन के खुद, क्या पता गुलशन 1-2 साल बाद गुलशन खुद पढ़ा रहा होगा टैली, है कि नहीं। तो गुलशन अपने ऊपर मेहनत करनी है और जुड़ के रहना है सक्षम रोजगार सोसाइटी से, और लोगों को बताना भी है। ठीक है, तो हमेशा मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और सक्षम रोजगार सोसाइटी के साथ रहो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रमोट करो। ओके, और कुछ? नो सर, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सर कोई असाइनमेंट है? हाँ, असाइनमेंट आपको क्लास हो चुकी है, अभी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जिसमें जो हमने क्वेश्चन सोल्व करे बिल्कुल सेम वही एक क्वेश्चन क्वेश्चन होगा। मेरे पास। हम्म। हेलो। हाँ हेलो जी दिलीप जी, बताइए। सर, एक क्वेश्चन है, मैं इंटरव्यू देने गया था उसके लिए, अकाउंट्स के लिए, मगर वो बोल रहे मैं वो लैपटॉप में इंटरव्यू पास कर लिया था, मगर वो बोल रहे थे कि वो जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो कॉमर्स का होना चाहिए। अच्छा, इसलिए तब मेरे मतलब को आप बोल ये रहे कह नहीं, रहे हो नहीं हो कि सकता। इससे आपको दिक्कत हो गई कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थे, है ना। हाँ, बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड से उन्होंने मना कर दिया। इंटरव्यू पास कर दिया था मैंने, लैपटॉप पे हाँ, C2 जो भी GST के बारे में सब कुछ बता दिया था मैंने, मगर वो अच्छा। बैकग्राउंड चक्कर में उन्होंने मना कर दिया। देखो देखो दिलीप जी, क्या होता है ना कि हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है। 100 कंपनी में जब आप जाओगे तो 98% कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। वो आपकी नॉलेज को ही शो करते हैं। बट क्या होता है ना, देखो आप कंपनी की एक आइडियोलॉजी और एक इंसान की जो एचआर होते हैं उनकी एक आइडियोलॉजी होती है कि जिसने 11th से कॉमर्स पढ़ी है तो उसकी जो बेसिक पे जो पकड़ होगी, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, वो ज्यादा अच्छी होगी इंस्टेड ऑफ कोई आर्ट्स का स्टूडेंट आ जाए। तो वहां पर उनको थोड़ा सा वो लगता है कि उनको रिस्क लगता है स्टूडेंट के ऊपर, या फिर जो भी इम्प्लॉय आता है तो उनको रिस्क लगता है, वो रिस्क से डरते हैं वो। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो इसलिए ऐसा होता है। बट ऐसा सब में नहीं होता है। तो कंपनियां बहुत सारी है, अगर आपको काम आता है, आपने इंटरव्यू क्लियर किया है, दैट्स मीन कि आपको नॉलेज है, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ है तो तमाम कंपनियां जो आपको नौकरी देने के लिए बैठी हुई हैं। ठीक है दिलीप जी, तो आप और कंपनियों में विकी इंटरव्यू दो, क्या वही विकी कंपनी को। विकी विकी सर गुड इवनिंग। इसको गुड दिलीप को इवनिंग कहो सर। कि ये सक्षम रोजगार में रिज्यूम भेजे, सक्षम रोजगार हाँ सोसाइटी में ये रिज्यूम भेजेगा, फिर वो आप फॉरवर्ड करो, हम आगे देखते हैं कहाँ हो सकता हाँ, देखो दिलीप जी, हमारी खुद की सोसाइटी सब कुछ करती है। मतलब आप ये सोचो कि जो सक्षम भारतीय सक्षम रोजगार सोसाइटी, ये सब एक रिलेट सोसाइटीज हमारी। और ये सब क्या करती है, बिल्कुल शुरुआत से लेके हमारी सोसाइटी का काम ही क्या है दिलीप, देखो हमारी सोसाइटी का काम है सबसे पहले पर्सनैलिटी पे काम करना। फिर उनको टीचिंग सिखाना, टीचिंग इन द सेंस कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर करना। फिर उनको रिज्यूम बनाना भी हम सिखाते हैं। फिर हम इंटरव्यू देना भी सिखाते हैं। और इंटरव्यू देने के बाद जब हम प्रिपेयर कर देते हैं उन लोगों को, फिर हम जॉब भी देते हैं। और जॉब देने के बाद अगर वो जॉब अच्छी चल रही तो बढ़िया है, उसके बाद हम उसको टीचिंग के लिए भी आगे ला सकते हैं। और हो सकता है हम उनको और आगे लेके जाते हो। जो सोसाइटी में आप ज्वाइन हो चुके हो, ये बेहद ही बहुत ही बढ़िया सोसाइटी है ये। और ये सोसाइटी आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी।
और इसी तरीके से आपको भी सोसाइटी को प्रमोट करके और ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है दिलीप। और देखो एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सारी तमाम कंपनियां हैं जहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो कभी भी आपको होपलेस नहीं होना या फिर अपने आप को डीमोटिवेट फील नहीं करना कि इस कंपनी में कॉमर्स मांगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे हम सब है, हमसे कभी पूछा नहीं गया कॉमर्स के बारे में, बस नॉलेज के ऊपर ही काम किया हम लोगों ने। तो आप और भी कंपनियां में सर्च करो, बहुत सारी साइट्स हैं। और सक्षम भारती में जैसा हमारे संजय सर ने बताया, आप यहाँ पर अभी रिज्यूम अपना भेजना, ग्रुप में डाल देना या फिर सर को पर्सनली भेज देना। तो फिर हम आपका आगे इंटरव्यू का भी देखेंगे और जॉब का भी हम ट्राई करेंगे कि आपकी जॉब लग जाए। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। और एनी एनी अदर क्वेश्चन? कुछ भी पूछ सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आज की क्लास के रिगार्डिंग पूछना है। आप वैसे भी कुछ आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहूंगा। हाँ ले लो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने 12th कंप्लीट करी है, हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब बीकॉम लेना चाहिए मतलब, या बीबीए मुझे लेना चाहिए। देखो, आप ये बीबीए भी ले सकते हो, आप बीकॉम भी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है इस चीज को करने की। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हूँ, हम्म। और मतलब मेरा अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है। विक्की, तो आप भी। यस मैम। कैन आई आंसर? यस श्योर मैम। मैम मैम तो हमारी प्रेसिडेंट मैम, हम नहीं, बताएंगे। पर ये इसका नाम है, वो जस्ट सारिक। सारिक, सारिक खान। हाँ यस मैम। सारिक। सारिक, द पॉइंट इज, मतलब मैं हमेशा कॉमर्स और अकाउंट्स की बहुत बड़ी प्रिपाउंडर हूँ। मुझे जी लगता मैम। है कि आप जो भी कॉमर्स या अकाउंट्स पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनको नौकरी मिलना बहुत बहुत आसान होता है। नौकरी रादर कैंपस यस। प्लेस, जैसे बीकॉम ऑनर्स विक्की ने किया हुआ है, मैं जानती हूँ। बीकॉम ऑनर्स करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलती है। ये पहली बात है। कोई भी जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, बीकॉम ग्रेजुएट है, आप कभी भी उसको बेरोजगार नहीं पाओगे। Whereas आप बीएससी ग्रेजुएट बेरोजगार मिलेगा, आपको बीए ग्रेजुएट बेरोजगार मिलेगा, पर बीकॉम ग्रेजुएट को नौकरी मिल ही जाती है। रादर यस 12वीं मैम। के बाद भी लोग ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं तो नौकरी मिलती है। अब जो तुम्हारा अगला सवाल था बीबीए का, यस मैम। बीबीए इज एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 12वीं के बाद कोई कोई आप गेन नहीं करते हो, हुनर गेन नहीं करते, स्किल गेन नहीं करते। जैसे अगर सबको पता ही है, माय ओन सन, ही इज एन एमबीए, और अभी तो यूएस में है। पर एमबीए वो कब करता है? आईआईटी रुड़की से उसने ग्रेजुएशन करी, 4 साल नौकरी करने के बाद एमबीए करता है। तो आप बीकॉम ऑनर्स पहले करो, आपको लगे आप इंडस्ट्री में काम करो, उसके बाद एमबीए करने की सोचो, अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो। ये 12वीं के बाद आपकी बीबीए की पढ़ाई किसी, ऑन कोई करोगे आपको भैया? वैल्यू नहीं क्या देगा। बात है? और आपकी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास, चाहे आपको रेगुलर कॉलेज ना हो, एसओएल से भी करो, तो भी वो जी। आपके लिए काफी काफी यूजफुल और फायदेमंद रहेगी। उसके बाद नौकरी का एक्सपीरियंस लो, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो, और यस मैम। ले तो एमबीए करनी है तो उसके बाद एमबीए करो। बीबीए करने का मेरे हिसाब से कोई ऐसा फायदा नहीं है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। यस, आई एम डन। यस मैम। हेलो। यस सारिक जी बताइए। यस सर, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो मैं बीकॉम लेना ही सोच रहा था, क्योंकि उसमें अकाउंटिंग से, टैली से रिलेटेड मतलब नहीं आता नहीं, है ना। बहुत बढ़िया। मैं हम आपको तो सीधा मैम से मिल गई सजेशन, और क्या चाहिए। यस सर, यस सर, मैम यस ने सर। मैम ने हम जैसे जैसे जो जो हमारे प्रेसिडेंट मैम है, वो उन्होंने मतलब हजारों लोगों को ट्रेन कर रखा है। मतलब हम तो एक दो हैं, उन्होंने हजारों लोगों को ट्रेन कर रखा है सोसाइटी के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि मैम को कितना एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने आपको सजेस्ट करा बीकॉम, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत बेहतर है। बट बाकी आप कुछ सोचिए आपको क्या बेस्ट लगता है। यस सर, और किसी की मैम क्वेरी है हमारे पास कि? चली आई थी सर एक बार। हम्म। सर एक क्वेश्चन हो रहा था मेरे पास। पूछिए। हाँ सर, ये क्वेश्चन था कि आपकी सर्कल में कोई ऐसा ऐसा शख्स है कि जो आर्ट से है, जो अकाउंट्स हैंडल करता हो? हाँ मेरे पास है दो तीन फीमेल्स फ्रेंड है मेरी, जो उन्होंने आर्ट्स करा था, फिर उन्होंने टैली का कोर्स करा, फिर उन्होंने एक्सेल का कोर्स करा था, उसके बाद उनकी जॉब लग गई थी, और नाउ दे आर वर्किंग एज अ गुड पोजीशन एज अकाउंटेंट। तो शी इज गुड, शी इज डूइंग गुड।
तो हाँ कर सकते हैं अकाउंट्स के बाद भी, बट आपकी टर्म्स पे पकड़ होनी चाहिए अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके सर, थैंक यू। ओके। सर अब असाइनमेंट का कुछ बता रहे थे। हाँ वो तो मैं लास्ट में दूंगा आपको, आफ्टर क्लास ना आपको पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा जिसमें आपकी एंट्रीज होंगी विद अमाउंट, वो आप ठीक। सबको उसमें टैली में फीड करना होगा। बाकी मैं हम्म, लॉस और प्रॉफिट नहीं बताऊंगा, लॉस और प्रॉफिट आप लोग खुद बताओगे, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो वही वो मोनिका डिसाइडिंग यादव फैक्टर का होगा। क्वेश्चन है। मोनिका यादव का एक क्वेश्चन है, अनम्यूट यस करो और मैम। बोलो। Hello, sir. हेलो। Sir, I'm Monica from Delhi. I have been working as a junior accountant for last 8 months, so I get chance for learn and ask many questions and things from my senior. But even he tell or teach me only for a limited thing. So what should I do to level up? देखो ऐसा बहुत होता है कॉर्पोरेट में ना, थोड़ी सी पॉलिटिक्स होती है, और कहीं ना कहीं जो सीनियर्स होते हैं ना वो अपनी जो नॉलेज होती है वो बहुत लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर शेयर करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम आपको सारी नॉलेज दे देंगे तो आप कहीं ना कहीं मेरी पोजीशन ना खा जाओ या फिर मेरी पोजीशन पे ना आ जाओ। तो इन चीज़ों में क्या होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप जैसे आप जो चीज़ पूछ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको 100% तो बताएंगे नहीं। तो आप घर पे आकर यूट्यूब करो, उसके बारे में स्टडी करो, उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है ना? जब आप किसी चीज़ को पढ़ोगे, लेक्चर लोगे या पढ़ोगे, उसके बाद उसका जब प्रैक्टिकल करोगे ना, तो उसकी जो कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ होगी ना, जो आपको डेप्थ में पता लगेगा जो हम काम कर रहे हैं वो काम कर क्यों रहे हैं। सबसे मेन जो रीज़न होता है क्यों, पता करना कि क्यों हो रहा है वो काम। तो जब आप क्यों के पीछे भागोगे और क्यों का रीज़न ढूंढोगे, रिसर्च करोगे, तो आप ऑटोमेटिक अपने सीनियर से साथ काम करने लगोगे, क्या पता उनसे ऊपर भी हो जाओगे। ठीक है, तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, but आप खुद की स्टडी करो और आप खुद उस पर यूट्यूब करो, पढ़ो, सक्षम हुआ सोसाइटी में अपनी क्वेरीज डालो, ठीक है? आपकी डेफिनेटली आपकी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। और बाकी धीरे धीरे सक्षम हुआ सोसाइटी और भी बड़े बड़े लॉन्च करेगी अपने क्लासेस, जिसमें हम और भी बड़े लेवल पे चीज़ें सिखाएंगे, बैंक को रिकन्सिलेशन करना, रिपोर्टिंग करना, रिकन्सिलेशन करना, फ्यूचर में और भी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू बहुत टू मच। थैंक यू। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सीए फॉर्म ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैं आपसे भी एक सजेशन लेना चाहूंगी कि मुझे ज्वाइन करनी चाहिए या फिर मैं ऐसे भी सीख सकती हूँ। आप ऐसे भी सीख सकते हो और आप ज्वाइन भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको, क्योंकि सीए फर्म में जाओगे तो आपको एज अ वो नॉर्मल आर्टिकल की तरह पेड करेंगे और आपको सिर्फ कन्वेंस देंगे, विच इज रिलेटेड लाइक 3,000 रुपीज पर मंथ और 5,000 पर मंथ। बट आप जहाँ पे अभी कर अर्न कर रहे होगे वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे। अगर आपके लिए पैसा प्रायोरिटी है तो आप फिर जॉब के साथ ही सीखो। अगर आपके लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं है तो आप सीए फर्म में जाके भी काम सीख सकते हो। डेफिनेटली कम पैसे मिलते हैं, बट आपको सिखाएंगे बेहतर तरीके से, बट आपको अमाउंट कम मिलेगा। तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको सीखने के लिए। दैट्स द रीजन, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। या थैंक यू सर। यू वेलकम। आई होप आप सभी की क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो मैं चलता हूँ हमारे अभिषेक जी के साथ। तो अभिषेक जी बस आप कर सकते हैं प्रोसेस आगे। थैंक यू। तो थैंक यू विकी जी फॉर सच अ वंडरफुल एंड प्रैक्टिकल सेशन। और आगे हम रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से कि अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि साथ में रिकॉर्ड प्रोसेस के लिए फोटो ले सकें हम साथ में। सारे काम प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। तो थैंक यू। और आप सभी अपने अटेंडेंस के लिए अपने नाम और अपने फोन नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट लिख के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आगे हम इस सेशन के कंप्लीट रिमार्क्स के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे प्रदीप कुमार मल्होत्रा सर की ओर टू यू सर प्लीज। माननीय दीपिका काला जी, विक्की गौतम जी, अभिषेक जी और स्टूडेंट्स, आज लगभग 44 बच्चों ने, पार्टिसिपेंट्स ने इस क्लास को अटेंड किया, जिसमें विक्की गौतम जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। पहले पिछली क्लासों का उन्होंने रिवीजन लिया कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसकी एग्जांपल दी। उसके बाद उन्होंने बताया व्हाट इज बैलेंस शीट। He told कि it is constituted by assets, liabilities and owner's equity. फिर उन्होंने
की पॉइंट्स बताए, एसेट्स के क्या क्या होते हैं, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, लायबिलिटी क्या होती है, व्हाट कंपनी ओज, लोन पेएबल, ओनर्स इक्विटी क्या होती है, ओनर्स स्टेक इन बिजनेस इंक्लूडिंग कैपिटल इन्वेस्टेड एंड रिटेन्ड प्रॉफिट। फिर उन्होंने बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है। फिर उन्होंने ये थ्योरी करके फिर टैली में एंट्री करके दिखाई, और बैलेंस शीट कैसे बनती है, फिर बैलेंस शीट में कभी पेमेंट करो या रिसीट करो तो उसके बाद किस तरह से बैलेंस शीट बदल जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल का होता है, जबकि बैलेंस शीट जो है एक स्पेसिफिक डेट की होती है। उसके बाद उन्होंने, जो पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछे उसके आंसर बड़ी अच्छी तरह से दिए। तो आशा है आप सबको ये समझ आया होगा। जिसको नहीं समझ आया वो विक्की गौतम जी के प्रीवियस लेक्चर्स को यूट्यूब में रिवीजन करें, और आज भी जो पढ़ाया है उसको भी रिवीजन करें, वो भी आज यूट्यूब में डाल दिया जाएगा। और ये आपको पीडीएफ फाइल से एक आपको एक्सरसाइज देने वाले हैं, असाइनमेंट, वो आप सबको करनी है और ग्रुप में उसको डालना है। धन्यवाद। तो थैंक यू सर फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और आगे हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए बढ़ना चाहेंगे अंकुश कुमार जी की ओर। Thank you, sir. Good evening, dear friends. I am Kush Kumar on behalf of Saksham Rozgar Society. Feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to Mr. Vicky Gautam for taking a wonderful session. We look forward to more such classes. A big thank you to all of you, dear students, for your active participation and interest. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, thanks to Mr. Pradeep Kumar Malhotra sir for having taken so much interest in the training session. Wishing you all a very good night. Thank you. तो थैंक यू अंकुश फॉर वर्ड ऑफ थैंक्स। बाकी कल की क्लास आपकी रहेगी बैंकिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स पे, और कल की क्लास का लेक्चर आपको लिंक मिल गया होगा, और इस क्लास का भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पे जाइए और देखिए अगर आपने कुछ मिस किया हो, और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें और वो भी कुछ सीख सकें। तो जाइए प्लीज़ यूट्यूब पे देखिए। और इसी शुभरात्रि, मिलते हैं कल की